नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर साहू। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ आप जो देख रहे हैं संत पॉल पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल मेरे साथ में हैं और हम इनके विद्यालय पर आए हुए हैं। सर, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपको हम दिखा रहे हैं इस विद्यालय पर किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाता है, बच्चे किस तरह से प्रेयर करते हैं, सारा चीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो पर। आप लोग देख रहे हैं इस विद्यालय पर बच्चे आने से पहले किस तरह से लाउड रीडिंग बोल बोल के पढ़ाई कर रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं जगह जगह पर शिक्षक खड़ा होके बच्चे का ध्यान देते हैं कि लाउड रीडिंग में भी बोल बोल के पढ़ने में भी बच्चे लापरवाही ना बरते। देख रहे हैं मैडम किस तरह से छड़ी भी पकड़ी हुई है कि कोई भी बच्चे शरारत ना करे। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर देखिए किस तरह से पुस्तक को पकड़ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए बड़े बच्चे, ये लोग भी फुल साउंड में तोता जैसे रट रहे हैं। Yoso, hey, take distance. Spread your hand like this. Okay, line up yourself. आप देख रहे हैं अभी बच्चे लोग को You spread your hand ahead also. सुबह का Like जो this. प्रार्थना होता है उसके लिए लाइन लगाया गया है। देखिए बंद कीजिएगा तो। School attention. School about turn. 1, 2. School left turn. 1, 2. School right turn. 1, 2. School about turn. 1, 2. Let's pray to God. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us our daily bread, forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Don't bring us to temptation, but deliver us from evil. Amen. Like a sunflower that follows every movement of the sun. Like a sunflower that follows every movement of the sun. Like a sunflower that follows every movement of the sun. Like a sunflower that follows every movement of the sun. In simplicity, charity, and follow. In simplicity, charity, and follow. Like a sunflower that follows every movement of the sun. Like a sunflower that follows every movement of the sun. Simplicity, honesty, and follow. In simplicity, honesty, and follow. In simplicity, honesty, and follow. Like a sunflower that follows every movement of the sun. Like a sunflower that follows every movement of the sun. So I turn towards you to
जय हिंद। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, सिंधु हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जाके, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। गुड मॉर्निंग all friends. Good morning everyone. I am Priya Kumari, student of class 8. Now I am going to present a thought. Today's thought is: individually we are one drop, but together we are an ocean. I repeat it. Individually we are one drop, but together we are an ocean. Thank you. Good morning everyone. My name is Achal Kumari, student of class 8. Now I am going to ask some GK question. Question number 1. Who is known as the Tiger of Mysore? I repeat it. Who is known as the Tiger of Mysore? Sultan. I repeat it. Tipu Sultan. Question number 2. Which city is known as Manchester of India? I repeat it. Which city is known as Manchester of India? Sir, Ahmedabad. I repeat it. Ahmedabad. Thank you. Thank you, sir. What is day today? Today is Tuesday. What is day today? Say loudly. Today is Tuesday. Okay, what about date? 4th of March. Say in full sentence. 4th of March. 4th of March. Okay. So, as we know, after 6 days, we'll start our annual examination. Are you knowing now? Everybody has got routine? So, you prepare well for your last examination, for your annual examination. And I have given you so many tips how to prepare your examination. So, for that also, you struggle hard. And from beginning only, I have been saying you have to give more than 4 hours at home for your self-study. Okay, for each subject, you should give half an hour. Then only you can prepare for your every subject. Okay, there are 8 subjects. Mostly there are 8 subjects. So for each subject, you have to give half an hour to prepare well. Are you understanding? Some of the students are reading only 1 hour. Within 1 hour, we cannot prepare all the subject. So in order to prepare nicely for all the subjects, we have to give more than 4 hours. Minimum 4 hours is very compulsory. Okay, more than 4 hours, it will be better for you. Okay, at morning, you get up early, you study there. Okay, after class, means afternoon, around 2 o'clock, 3 o'clock, you give time for your study. Then, in the evening, before your lunch, before your dinner, you must study. In this way, you have to complete your 4 hours. And whatever you are learning in the class, you try to revise at home. Then only your practice will be okay. So these things you must keep in your mind. And this is the annual examination. So you have to study whole over the chapter. Okay, means whole the book. Not only recently we are reading. Okay, whatever we have studied in the previous time, that one also you have to capture. Okay, means we have to manage all the chapters. And for class 8th and 9th,
I have told you yesterday only. From 10th onwards, you have also to start your board examination. So for you, there is a good chance. Okay, in school today onwards, sir. Today onwards, no. Today onwards there is exam, no. We are taking as a pre-test. So you write exam that will be fruitful for your board examination. Okay, so this thing you must keep in your mind. And now everybody catch a book and you have to go line by line to your classroom. Nobody will go at a time. अभी आप लोग देख रहे हैं प्रार्थना होने के बाद बच्चे अपने अपने क्लासरूम में जा रहे हैं। अपने पुस्तक जो प्रार्थना से पहले बोल बोल के जो पढ़ रहे थे, लाउड रीडिंग, उसके बाद अब देख सकते हैं किस तरह से बच्चे यहाँ पर जाते हैं और इस स्कूल का लाइन आसान क्या सुविधा है उसके बारे आपको अभी मेरे वीडियो में बने रहे। आपको हम जो प्रधान अध्यापक है रोहित एक्का, इनसे भी खास बातचीत करेंगे, उसमें आपको हम पूरी जानकारी देंगे। बने रहिए मेरे साथ वीडियो पर। शिक्षकों के लिए टीचर रूम बनाया गया है। यहाँ पर सभी शिक्षक अपने अपने अटेंडेंस रजिस्टर को लेके अपने अपने क्लासरूम में अभी जाएंगे। गुड मॉर्निंग इमिल सर। This is your no 15 plus 45 5 6,000. सभी शिक्षक अपने अपने क्लासरूम में जा रहे हैं। अभी संत पॉल पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल श्री रोहित एक्का मेरे साथ हैं। अभी इनसे खास बातचीत करेंगे जिसमें आप लोग को जानकारी देंगे कि विद्यालय में क्या क्या है, क्या सुविधा इन्होंने दे रखा है। साथ में आप लोग को बातचीत करने के क्रम में क्लासरूम को भी हम दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में। आ गया सर, आपसे हम जानकारी लेना चाह रहे हैं कि मेरे ऑडियंस को कि आप जो ये टीचर रूम हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसमें जो आप जो व्यवस्था किए हुए हैं टीचर के लिए, उसके बारे 2 शब्द में वर्णन कीजिए। साथ में हम जो देख रहे हैं कंप्यूटर लैब यहाँ पर हमको दिख रहा है, और क्या क्या जो आप सुविधा दिए हुए हैं वो चीज को थोड़ा विस्तार में आप जिक्र कीजिए। सबों को नमस्कार। आपके YouTube चैनल में सभी दर्शक हैं, उन सबों को भी मेरा गुड मॉर्निंग है। ये हमारा जो विद्यालय है संत पॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसका स्थापना हम लोग सन 2014 में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सर्वांगीण विकास को सोचते हुए हम लोग किए हैं। और इस विद्यालय में अभी लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये हमारा जो बगल में प्रिंसिपल का रूम है, उसके बगल में शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए हम लोग रूम बनाए हैं, जिसमें जो भी शिक्षक हैं वे अपना जो पढ़ाने का जो पुस्तक है उनको रखते हैं, बैठते हैं, और अपना जो रेस्ट का समय होता है उसमें वे लोग रेस्ट करके अपना पाठन का तैयारी भी करते हैं। साथ ही साथ हमारे इस विद्यालय में आज के समय में जिस तरह से कंप्यूटर की मांग है, उस कंप्यूटर को देखते हुए, उस मांग को देखते हुए हम लोग हमारे विद्यालय में थ्योरी के रूप में हम लोग क्लास में पढ़ाते भी हैं, उसके साथ में प्रैक्टिकली हम लोग बच्चों को यहाँ पर कंप्यूटर प्रैक्टिकली लोग को प्रैक्टिस कराया जाता है। कैमरामैन अभी हम बोलेंगे कि हमारे विद्यालय में भी मात्र 4 सिस्टम है। अभी इस वर्ष हम लोग फिर से इसको बढ़ा करके और ज्यादा संख्या में हम लोग सिस्टम रखने का प्रयास करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कम समय में ज्यादा शिक्षा कंप्यूटर का दे सकें। कैमरामैन एक बार थोड़ा सा जो अंदर का जो नजारा है वो आप एक बार दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है। साथ में आप लोग देख सकते हैं कि बिजली नहीं भी रहने की स्थिति में यहाँ पर इन्वर्टर की सुविधा है, जिसमें बच्चों को दिक्कत ना हो। पर आप देख सकते हैं अपडेट यहाँ पर 4 कंप्यूटर अपडेटेड हैं। चलिए आपको फिर
आगे की और जानकारी देते हैं। सर, यहाँ का अगर कंप्यूटर के अलावा अगर हम यहाँ का जो फीस है, सुविधा है, उसके बारे में अगर जिक्र करें। देखिए, मैं शुरू में ही आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ यूट्यूब चैनल में कि हमारा जो विद्यालय का स्थापना का जो उद्देश्य है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो निम्न स्तर के लोग हैं उनकी कमियों को देखते हुए, उनकी जो आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम लोग यहाँ का जो फी है उसको हम लोग बहुत निम्न रखे हैं। और यहाँ हम लोग जो इंग्लिश मीडियम का जो सही प्रारूप होना चाहिए उसको पूरी तरह से हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में भी कुल 18 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं और उसमें टोटल शिक्षकों को हमने जिसका जो अहर्ता होना चाहिए वो पूरा अहर्ता पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल है इसलिए उनकी जो नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश बोलने की, ये सारी सुविधाओं के साथ हम लोग सभी शिक्षकों को यहाँ पर रखते हैं। और स्कूल में हम लोग पूरी नियम बना दिए हैं कि हमारे स्कूल में प्रवेश करने के साथ ही आपको यहाँ का जो इन्वायरमेंट है इंग्लिश मीडियम का, वो पूरे इंग्लिश मीडियम के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए, बातचीत किया जाए। इस तरह से हो रहा है। बच्चे भी आज हमारे साथ इंग्लिश बातचीत करने में सक्षम है। और हमारे विद्यालय में कुल मतलब 10वीं कक्षा तक यहाँ पढ़ाई लिखाई होता है, जिसमें बेबी नर्सरी से लेकर के 10वीं क्लास तक के बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं। और हर एक कक्षा के लिए अलग से क्लासरूम है और हर एक क्लास में रूटीन वाइज टीचर भी अवेलेबल है। हमारे बीच अभी 18 टीचर है जैसे कि मैं बताया। और हर पीरियड में 2 शिक्षक हमारे पास एक्स्ट्रा रहते हैं जो रेस्ट में रहते हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरह से आप टीचर का व्यवस्था करके रखे हैं कि कोई भी टीचर बीच में अगर तबीयत खराब हो जाता है या मान के चलिए लंबा पीरियड पढ़ाने में कुछ हरासमेंट होता है तो सभी शिक्षक को एक एक पीरियड जिस तरह से आप बोल रहे हैं उसमें सबको रेस्ट मिल रहा है। और आगे जैसे अगर हम बात करें जैसे बच्चे लोग को आने जाने के लिए, उसके लिए आप विशेष क्या सुविधा रखे हुए हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हम लोग स्कूल का स्थापना किए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको हम लोग उनका सर्वांगीण विकास के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अभी हम लोग बहुत ज़्यादा बस का व्यवस्था नहीं किए हैं, मतलब ज़्यादा खर्च वाली चीज़ें हम लोग व्यवस्था नहीं किए हैं। हम लोग अभी बच्चों को अपने घर से स्कूल तक लाने के लिए हम लोग ऑटो का व्यवस्था किए हैं। साथ ही साथ 4 व्हीलर जैसे इको वैन होता है उसका व्यवस्था किए हैं और उसके माध्यम से हम लोग बच्चों को स्कूल लाते हैं। और उसका भी फी हम लोग कम से कम रखने का प्रयास किए हैं, जिसमें 350, 400, 450, इससे ज़्यादा 500 से ज़्यादा हम लोग का वैन फी भी नहीं है। इसमें उसमें भी हम लोग गार्जियनों को अगर उनका स्थिति खराब रहती है, आर्थिक स्थिति खराब रहती है या कोई परेशानी होती है, उसे में अगर गार्जियन हमारे पीछे आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, तो हम लोग उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनको हम लोग रियायत देते हैं अपना फी जमा करने में। और इस तरह से गार्जियन हम लोग से जुड़े हुए हैं, उनका हर दुख सुख में हम लोग भी जुड़े हुए हैं और गार्जियन भी हम लोग का दुख सुख में जुड़ा हुआ है। और इस तरह से हम लोग सब मिल करके इस स्कूल का बेहतर से हम लोग संचालन कर रहे हैं। अगर हम जिक्र करें तो कोई भी गार्जियन जितने भी हमारे बच्चे हैं, किसी के ऊपर ये दबाव नहीं बनाया गया है कि नहीं आप 1 दिन में ही फीस जमा कीजिए, 2 दिन में ही जमा कीजिए। अगर उनका सिचुएशन आर्थिक स्थिति अगर दयनीय अगर चल रहा है, जिस तरह से आप जानकारी दिए कि नहीं उसको कुछ समय दिया जाता है, लेकिन बच्चे को कक्षा से वंचित नहीं किया जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे बेहतर आप जो सुविधा दिए हैं। और स्कूल में जैसे जो आप सुविधा जो लगाए हुए हैं, जो दिए हुए हैं, एक बार उसके बारे में जिक्र कीजिए कि जैसे बच्चे को कहीं टॉयलेट जाना हुआ या कहीं शौच के लिए जाना हुआ तो उसके लिए विशेष आप क्या व्यवस्था करके रखे हुए हैं? जैसे अभी हमारे विद्यालय में शुरुआती में इस तरह का व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से गार्जियन पर ही डिपेंडेंट है। और हम लोग प्रयास किए, अभी मानते चलिए हम लोग का जो स्कूल का संचालन हम लोग जैसे बताया कि 2014 से स्टार्ट किए हैं, 2014 से लेकर 24 अभी मोटा मोटी हम लोग का 10 साल कंप्लीट करने को जा रहा है। इस वर्ष अभी मार्च में हम लोग का 10 साल कंप्लीट होगा। तो इस अवधि हमारे विद्यालय का, पहले हमारा विद्यालय एक रेंट घर में चलता था, वो वहां से हम लोग ऊपर आकर के अभी हम लोग स्कूल के लिए हम लोग खुद का स्कूल के नाम पर स्कूल के लिए हम लोग 2 एकड़ 21 डिसमिल जमीन हम लोग खरीदे और इस जमीन में अभी खुद का स्कूल हम लोग बनाए हैं, जिसमें कि अलग अलग कमरा है, अलग क्लास के लिए कंप्यूटर रूम है, मान के चलिए अभी टीचर्स के लिए रूम है, ऑफिस है। और इस तरह से
ये सारी सुविधाएं हैं। साथ ही साथ प्लेग्राउंड का भी पूरी व्यवस्था है और इसके साथ में हमारे बच्चों को पेयजल की भी सुविधा है, जिसमें हम लोग एक जल मीनार लगाए हुए हैं। जल मीनार के साथ में हम लोग का टैप लगे हुए, रनिंग वाटर की व्यवस्था है। शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था है और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अलग से शौचालय है। और साथ ही साथ हमारा जो भी शिक्षक हमारा जो भी बच्चे हैं उनको शौच के लिए हम लोग अलग से पेशाब खाना भी बनाए हैं, जिसमें बच्चे जा करके अपना पेशाब और जो भी अपना जो ये है उसको ये लोग करते हैं। इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में रूम की कमी हो रही है, उस रूम की कमी को भी दूर करने के लिए भी हमारे बगल में काम चल रहा है और भी संख्या हम लोग का एडमिशन भी बढ़ रहा है, तो हम लोग का शिक्षण करने की आवश्यकता पड़ेगी सेशन में। इसलिए हम लोग अभी नया बिल्डिंग बनाने का हम लोग प्रयास और शुरू कर दिए हैं, जो कि हमारा बगल में है। एक बार इसको भी देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर आगे काम चल रहा है, कि ये भी कुछ दिन में तैयार हो जाएगा नए सेशन तक में। और यहाँ पर भी आप लोग को बच्चों को पढ़ाई के लिए मतलब जो भी बुनियादी सुविधा है वो सारा चीज आपको मिलेगा। और अगर हम जिक्र करें सर, इस बार आपके विद्यालय से कितने बच्चे मैट्रिक लिख रहे हैं? जैसे इस बार हम लोग का विद्यालय से मात्र 5 बच्चे ही परीक्षा लिख रहे हैं मैट्रिक के लिए। और 5 बच्चे का मुख्य कारण ये है कि हमारा जो विद्यालय का जो विद्यार्थी हैं, जो नीचे से लेकर के जैसे ग्रास रूट से लेकर के जो ऊपर चढ़ते हैं चैनल बाय चैनल क्लास में, उसी को हम लोग हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए अलाउ करते हैं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम है और इंग्लिश का एनवायरनमेंट हम लोग अपने जो नीचे ग्रास लेवल के जो क्लास है, जैसे बेबी नर्सरी LKG UKG, वहां से हम लोग पढ़ाते पढ़ाते हम लोग आगे ले जाते हैं। ये हम लोग का तीसरा बैच है। शुरुआती समय में हम लोग का बीच में संख्या कम था, इसीलिए अभी जो 5 संख्या हम लोग को दिख रहा है। और हम लोग कहीं से हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करते हैं कि कोई सरकारी स्कूल से बच्चे आ रहे हैं जिसका इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, उसको हम लोग एडमिशन लेकर हमारा संख्या बढ़ाएं, ऐसा हमारा सोच नहीं है। जो हमारा ग्रास में जो नीचे क्लास में जैसा उनको हम लोग ये करते हैं, पढ़ाते हैं, उसका नींव मजबूत करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग उसको ऊपर क्लास में ले जा करके, चाहे वो 2 बच्चा हो 3 बच्चा हो, लेकिन उसके लिए अलग क्लास और उसके लिए अलग अलग हम लोग शिक्षक देने का प्रयास करते हैं। और अभी शुरुआती में भी देख रहे हैं तीसरा बैच है, 5 बच्चे हैं। नीचे क्लास जैसे 9th क्लास में, उसमें अभी 10 बच्चे हैं। और इसी तरह से नीचे क्लास में ज्यादा संख्या अभी आने वाला समय में हम लोग का फिर से ग्रोथ करते जा रहा है। और अब तीसरा बैच है। और परसेंटेज के हिसाब से भी देखेंगे तो पिछले बार का रिजल्ट हम लोग देखे तो 89-90% हम लोग का बच्चा में स्कोर दिखा है। अगर हम इसको 7 शब्दों में अगर बोले तो 80+ % मैट्रिक में आया है आगे पीछे। और अगर एक और इस विद्यालय का एक होता है रीढ़, कि कोई एक ऐसा बच्चा जो आपका विश्वास कि नहीं हम जो पढ़ाए हैं उस पर एक, हमारे क्षेत्र में कोई वैसे बच्चे हैं जिसको आप नीचे से पढ़ा के और उसको एक सही मुकाम तक, जो कि अगर जिक्र हम करें कि वो बच्चा कुछ नहीं जानता था होगा, वैसा कोई बच्चा है जो कि आप उसको नीचे से ऊपर की ओर लेके हैं? अगर 2 मिनट उसका भी अगर जिक्र करें कोई ऐसा बात है जिसे ये बहुत दूर की बात नहीं है। ये हमारे बीच एक बच्चे हैं साहू समाज से, हीरा साहू करके एक बच्चा है, जो बगल में एक अल्पसंख्यक विद्यालय है, वहाँ उसका पढ़ाई लिखाई होता था। और वो अपना बुरी संगति के कारण वो अपना पढ़ाई लिखाई में अपना मन नहीं बनाता था, नहीं लगाता था, और वो इधर उधर घूमना, दोस्तों के साथ आना जाना करना। वो अभी तो वो 7 क्लास में पढ़ता था, लेकिन उसका जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो 0 था। मतलब वो 2 अक्षर का जो मिल करके जो शब्द बनता है उसको भी वो नहीं पढ़ सकता था। वैसे स्थिति में हम लोग, उनकी जो गार्जियन आए मेरे पास स्कूल में नामांकन कराने के लिए, तो मैंने साफ इनकार कर दिया था फर्स्ट में। लेकिन उनका जो जिज्ञासा देखे कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को सिखाने के लिए जो जिज्ञासा था, उस जिज्ञासा को देखते हुए मैं गार्जियन को बोला कि अगर आप अपने बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं, उनको सही शिक्षा देना चाहते हैं, तो उसका जो बेसिक है, जो ग्राउंड लेवल का जो शिक्षा होता है, नीचे का जो शिक्षा होता है, जड़, तो उसको आपको मजबूत करना होगा। इसलिए अगर आप उसको मेहनत करना चाहेंगे, उसको सिखाना चाहेंगे, तो आपको नीचे क्लास में एडमिशन करना होगा। उसको हम लोग नीचे क्लास में एडमिशन कराए, उसको जो ग्राउंड लेवल का जो शिक्षा होता है नीचे का, उसको हम लोग पूरी तरह से सिखाए और वो अच्छा से पकड़ा। और अभी वो अच्छा प्रोग्रेस करके अभी वो मतलब ग्रेजुएशन का पढ़ाई कर रहा है।
अगर और अभी उसको इंग्लिश भी आती है, अच्छी तरह से बोलता है भी। अभी भी हम लोग फीडबैक लेते हैं तो वो अच्छा कर रहा है अभी। अगर हम लोग जिक्र करें हमारे जो लोकल, हम लोग का जो पोजेंगा का जो क्षेत्र है या पालकोट प्रखंड में अगर बात करें, तो हम लोग का नजदीक में ही एक बच्चा है जो कि कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता है। जो कि हीरा साहू हीरा साहू ओबिरा से है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, या तो उनको पूछ सकते या हैं, फिर उनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि आज वो किस मुकाम तक हैं। इसीलिए ये चीज तो साबित होता है कि मेहनत करने वाला के लिए उम्र नहीं देखा जाता है। और जिस तरह से प्रिंसिपल जानकारी दिए कि वो 7 क्लास का बच्चा होके और वो नीचे क्लास में बैठ के अपने आप को अगर हम शर्माना शुरू करते तो शायद आज वो इस मुकाम तक नहीं पहुंचता, लेकिन वो बच्चे के साथ बैठ के आज देखिए वो ग्रेजुएशन कर रहा है। तो हम लोग का विद्यालय का एक रीढ़ बोला जाए, एक एग्जाम्पल देने के लिए कि हाँ ये बच्चा को हम लोग किए हैं। और हॉस्टल का जो सुविधा है उसके बारे में भी कुछ जिक्र। हॉस्टल जैसे यहाँ जो विद्यालय है, इस विद्यालय में भी बहुत दूर शुरू से ही मतलब हॉस्टल का हम लोग व्यवस्था किए हैं। पहले मेरा विद्यालय पोजेंगा में एक रेंट में चलता था, तो उसी समय हम लोग वहाँ स्कूल अपना जमीन में घर बना करके हम लोग पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे। तो उस समय हम लोग अपना घर में ही हम लोग हॉस्टल का निर्माण कराए और उस समय 2014 से ही हम लोग बच्चों को हॉस्टल में रख करके पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। अभी हॉस्टल का भी पूरी तरह से विकास हो चुका है। वहाँ हर सुविधा व्यवस्था है बच्चों को रहने के लिए, उनके टॉयलेट बाथरूम के लिए, उनको नहाने धोने के लिए सारा वाटर, रनिंग वाटर की व्यवस्था है। साथ ही साथ रहने के लिए रूम, लड़कियों के लिए अलग सा रूम, लड़कों के लिए अलग सा रूम, और लड़कियों को देखभाल करने के लिए फीमेल टीचर है, लड़कों को देखने के लिए मेल टीचर। इस तरह से 4 वार्डन हम लोग वहाँ पे रखे हैं। और साथ में मैं खुद वहाँ पर रहता हूँ, मेरा पूरा परिवार वहाँ पर रहते हैं और हम लोग का संरक्षण में बच्चे वहाँ पर रहते हैं। अभी कुल 140 बच्चे हमारे हॉस्टल में रहते हैं, लड़का लड़की मिला करके। और इस तरह से अच्छा है। और हॉस्टल का भी कोई वैसे ज़्यादा फी वगैरह सब नहीं है। मात्र हम लोग मंथली 1500 रुपये ले करके बच्चों को हर सुविधा व्यवस्था कराते हैं। और उसमें हम लोग 3 टाइम भोजन खिलाते हैं, सुबह, उसके बाद में शाम में, दोपहर में स्कूल से जाने के बाद। और बीच बीच में हम लोग जैसे हर रविवार को हम लोग चिकन देते हैं। और उनका जो हॉस्टल का जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से हम बच्चों को देख रेख करके उसको क्लास में जो भी पढ़ाई लिखाया जाता है उसको हम लोग हॉस्टल में भी उसके लिए रिवीजन कराते हैं। ट्यूशन टाइप से हम लोग ट्यूशन का व्यवस्था कराते हैं और बच्चे भी रह रहे हैं। और जो खाना बच्चों के लिए बनता है वो खाना भी हम लोग स्वयं खाते हैं और एक परिवार की तरह बच्चों को हम लोग रखते हैं। और काफी उत्सुकता होती है कि इस तरह का सेवा करने से हम लोग को भी खुशी मिलती है। अगर संक्षेप में ऑडियंस से यही हम बोल सकते हैं कि जो हॉस्टल है वो हॉस्टल नहीं, एक प्रिंसिपल का आवास है। हॉस्टल बहुत जगह देखते हैं कि हॉस्टल है तो सिर्फ हॉस्टल केवल रहता है, लेकिन यहाँ पर जो इनका हॉस्टल जो खुला हुआ है सेंट पॉल स्कूल का, वो हॉस्टल नहीं, प्रिंसिपल के आवास के साथ साथ हॉस्टल, जो कि बच्चे को किसी भी तरह से कोई दिक्कत हुआ या कोई भी परेशानी हुआ तो खुद प्रिंसिपल मौजूद रहते हैं। तो ये सुविधा यहाँ पर है। आप लोग कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आइए, संपर्क कीजिए। हम अपना डिस्क्रिप्शन में इनका मोबाइल नंबर जरूर हम डाल देंगे, आप मोबाइल नंबर से संपर्क कर लीजिएगा। और ये विद्यालय जो है आपका केवंटोली से इन करना पड़ता है, आना पड़ता है। कच्ची रोड, कालीकरण रोड है जो आपका दमकरा से पहले आपको मिलेगा। पालकोट से सीधे आना है आपको केवंटोली, और केवंटोली के बाद ये विद्यालय आपको ऑन रोड ही मिलेगा। NH पर नहीं है लेकिन ये ऑन रोड ही है।